Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I had recently completed my MTech from IIT Delhi in 2025. So, today we are discussing about the most expected questions of DC machines which may be asked in GATE 2026. So, the first question is that firstly solve by your own, then see the solution. Okay, a 24 kilowatt, 250 volt, 1500 RPM separately excited DC generator as given. Armature resistance are also given, and no load given terminal voltage is there. The terminal voltage of the generator when it is delivered rated current at a speed of 1450 RPM. What क्या होगा? Okay, so we can write like that. Given power is equal to 24 kilowatt. Okay, and B is 250 volt is given. Okay, and N is 1500 RPM. Okay, and armature resistance is वो 0.5 ohm. Okay, and running under no load to give terminal voltage of 260 volt. 260 volt terminal voltage. Okay, and the question asks that what is the value of B at 1450 RPM. Okay, so how we can solve these questions? Let's see. First find out what is the armature current. So power is equal to B into I. So I equal to power कितना है 24. ओके, एंड B कितना है 250 वोल्ट. ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 96 एम्पियर. ओके, एंड 96 एम्पियर इसका आ गया. एंड हम कह सकते हैं E इक्वल टू होता है P5NZ डिवाइडेड बाई 60A. ओके, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं KN phi n. ओके, तो KN इज द कांस्टेंट विच इज इक्वल टू PZ बाई 60A. ओके, PZ बाई 60A. सो इससे हमें क्या मिल रहा है? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू N. ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं Eg1 डिवाइडेड बाई Eg2 Eg0 divided by N1 N0 5 and 5. फ्लक्स इज सेम. ओके, सो फ्लक्स कैंसिल हो जाएगा. इस रिलेशन का मैंने यूज किया हूँ. ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं? Eg1 N1 हमें कितना गिवन है? ये N1 है. ओके, एंड ये N0 है. सो N1 है 1415 RPM and N0 is 1450 RPM N1 and N0 is 1500 RPM into Eg0. So we have to find Eg0 for this. Okay, so Eg0 equal to separately as a DC generator, so V plus Ia into Ra. So V कितना है 250 volt, 260 volt. 260 volt plus Ia is what? Ia is 96 and Ra is what? 0.5. Okay, and when we solve this 96 into 0.5 plus 260 is 200 308, but V naught value is given that. Okay, so this is not correct. into 260. ओके, सो Eg1 हमारा कितना आ जाएगा? Eg1 आ जाएगा हमारा 251.33. देखो 260 वोल्ट हमारा टर्मिनल वोल्टेज गिवन था. ओके, तो Eg1 हम लोगों ने फाइंड कर लिया. अब हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा. सो जनरेटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? Eg1 इक्वल टू Vt प्लस
IA ओके। सो इजी वन हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया है 251.33 टर्मिनल वोल्टेज हम लोग को फाइंड करना है और IA कितना है 96 ओके 96 एम्पियर and RA is what 0.5. So after solving this we can find that 203.33 volt is the answer of this question. Okay, I think you are also solve these questions and get the same solution. Okay, come to the next question. A 3-4 phase 16 pole alternator has a star connected winding and 144 slots are given. So write like step by step. Okay, 3 phase is given, pole how much pole is given 16 pole and the star connected slot is 144 and conductor is 10 conductor per slot. So total conductor कितना हो जाएगा, Z is denote to conductor. Okay, so 144 into 10 कितना आ जाएगा 1440. Okay, and if the flux per pole, flux कितना given है हमें 0.04 वेबर and the supply frequency given है हमारा 50 हर्ट्ज. देन हमसे क्या पूछ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज विल बी व्हाट. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है 4.44 एफ आई एम एन इंटू के पी इंटू के डी. ओके, सो हमें के पी फाइंड करना है और के डी फाइंड करना है. ओके, सो हम लोग टोटल टर्न्स पहले निकालते हैं, एन की वैल्यू निकालना होगा ना. तो टोटल टर्न्स पर फेज. ओके, पर फेज क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है टोटल नंबर पर फेज, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर टोटल कंडक्टर डिवाइडेड बाय 2 और ये अगर 3 फेज में है तो डिवाइडेड बाय 3. सो टोटल कंडक्टर कितना है 1440 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 एंड व्हेन यू सॉल्व देन 240 इज द टोटल टर्न्स पर फेज. ओके, सो we have to find KD so that so firstly find slot angle बीटा इज इक्वल टू क्या होता है पी पाई इंटू एस. एस मीन्स स्लॉट. ओके, सो पी पोल कितना गिवन है हमें 16 180 पाई को 180 लिख सकते हैं. स्लॉट कितना गिवन है हमें 144. सो 144. सो व्हेन यू सॉल्व स्लॉट एंगल बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास 20 डिग्री. ओके, एंड एम फाइंड करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला होता है स्लॉट डिवाइडेड बाय पोल इंटू फेज. स्लॉट पर पोल इंटू फेज. तो स्लॉट कितना गिवन है 144, पोल कितना गिवन है हमें 16, फेजेस 3 है. 144 16 इंटू 3 सॉल्व करोगे आप तो 3 मिलेगा. ये मैं किस लिए निकाला हूँ, ये एम निकाला हूँ, स्लॉट एंगल निकाला हूँ, टोटल टर्न्स निकाला हूँ, क्योंकि मुझे ब्रेथ फैक्टर चाहिए के डी. ओके, ब्रेथ फैक्टर के डी का फॉर्मूला क्या होता है साइन एम बीटा बाई 2 एम साइन बीटा बाई 2. ओके, सो हमारा क्या निकला है साइन एम कितना आया है 3 और बीटा कितना आया है 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 और ये कितना है एम कितना है हमारा 3 साइन बीटा कितना है 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 2. सो हम लोग इसे लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 इंटू साइन 10 डिग्री. ओके, साइन 10 डिग्री. सो when you solve then get the answer of 0.96. सो हमें KD मिल गया. KP का वैल्यू इसमें 1 होगा. सो E इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 4.44. F का कितना वैल्यू है 50 हर्ट्ज. फ्लक्स कितना गिवन है 5M 0.04. ओके, एंड कितना हम लोगों ने निकाला है टोटल टर्न्स पर फेज 240 इंटू
उसके बाद हम लोगों ने KP1 एंड KD कितना हम लोगों ने फाइंड किया 0.96। तो E हमारा कितना आ जाएगा इंड्यूस्ड EMF, जब आप इसे सॉल्व करो कैलकुलेट करोगे तो 2046 वोल्ट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके इजी। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी ऐसा दिया रहे, तो आप ई का फॉर्मूला यूज करना इंड्यूस्ड ईएमएफ का 4.44 FIM into N into KP into KD। okay, so come to the next question. So in this question say that a synchronous generator is given, is running under overexcited with excitation voltage of 1.40 per unit, having synchronous reactance 1.20 per unit, एंड बोल रहा है रियल पावर 0.50 टू एन इनफाइनाइट बस, सडनली प्राइम ओवर टॉर्क इज इंक्रीज बाय 1%, देन परसेंटेज इन रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर। ओके, सो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, B का वैल्यू है 1.40 पर यूनिट। ओके, एंड X का 1.20 पर यूनिट, एंड B हमारा सेकेंड इनफाइनाइट वोल्टेज कितना गिवन है हमें, सेकेंड excitation voltage is this much is E, okay, and this is 1 per unit rated voltage। okay, rated voltage is this, and power कितना गिवन है हमें 0.5। सो हम लोग लिख सकते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है, B इंटू ई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू साइन डेल। वेन ओनली रिएक्टेंस इज गिवन देन पावर का फॉर्मूला क्या होता है, B इंटू ई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू साइन डेल। सो पावर हमारा कितना गिवन है 0.5 रियल पावर, V1 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई एक्स कितना है 1.2 और साइन डेल। सो यहाँ से डेल्टा नॉट की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा आप इसे सॉल्व करोगे तो डेल्टा नॉट की वैल्यू कितनी आएगी 24.4 डिग्री। ओके, और ये क्या कह रहा है, ये इनफाइनाइट बस सिस्टम है ना, ये इनफाइनाइट। सो फॉर इनफाइनाइट बस सिस्टम, इनफाइनाइट बस सिस्टम टॉर्क इंक्रीजेस होगा तो उसका क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है ना टॉर्क इंक्रीज हो रहा है, टॉर्क इंक्रीज मीन्स पावर इंक्रीज बाय सेम क्वांटिटी। ओके, इंक्रीज बाय सेम क्वांटिटी ऑफ परसेंटेज। ओके, सेम परसेंटेज, एंड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। ओके, सो डेल पी कितना आ जाएगा हमारे पास, डेल पी आ जाएगा 1% इंक्रीज कर रहा है 1% ऑफ 0.5, क्योंकि रियल पावर आप देखो कितना गिवन है 0.50। सो कितना आ जाएगा 1% ऑफ 0.5 0.005 0.005 पर यूनिट। ओके, तो परसेंटेज चेंज इन रियल पावर कितना आ गया 0.005 पर यूनिट। अब हमें रिएक्टिव पावर निकालना है, तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्यू क्या होता है, B इंटू ई बाई एक्स कॉस डेल माइनस बी स्क्वायर बाई एक्स। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली डेल्टा इज चेंजिंग, only delta is changing, so we can take derivative of this। okay, okay, so dq by d del करेंगे तो क्या मिलेगा, dq by d del करेंगे हम तो माइनस बी ई बाई एक्स एस साइन डेल, कॉस डेल का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन डेल। ओके, एंड dp बाई डी डेल करेंगे तो कितना मिलेगा हमें dp, तो ये हो जाएगा भी ई कॉस डेल डिवाइडेड बाई एक्स। ओके, साइन डेल का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस डेल, और जब हम इसे डी क्यू अपॉन डी पी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, बी ई एक्स एस कैंसिल आउट इच अदर हो जाएगा, और क्या आ जाएगा साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस क्या होता है 10, तो 10 डेल लिख सकते हैं। ओके, सो अब हमें फाइंड कर सकते हैं कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन क्यू। ओके, सो 10
यहाँ पे परसेंटेज कितना हो गया 10 डेल, तो डेल का वैल्यू कितना है 25.4 डिग्री। ओके, तो 25.4 डिग्री कितना आ रहा है 0.475 एंड परसेंटेज डेल क्यू इज माइनस 0.475%। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, जो कि वो रिएक्टिव पावर डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव साइन इंडिकेट रिएक्टिव पावर डिक्रीजेज। ओके, डिक्रीजेज। Okay, so this is the answer of this questions. This real power is this and reactive power is this. Okay, easy. Come to the next question. So here we go. First, a 200 volt DC shunt motor takes 22 ampere at rated voltage and runs 1000 rpm. Armature resistance and field winding resistance are given, and what is the additional resistance required in the armature circuit to reduce the speed of 800 rpm when the loaded torque is increases as the cube of the speed. Okay, so पहले सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को गिवन क्या है वो हम लोग लिख लेते हैं। सो V इजकल टू 200 वोल्ट गिवन है और I हमें 22 एम्पियर ये भी गिवन है और RA कितना है 0.1 ओम। ओके, 0.1 ओम एंड ये N की वैल्यू कितनी है, कितने आरपीएम में कर रहा है 1000 आरपीएम। ओके, एंड आरएसएस कितना गिवन है, शंट रेजिस्टेंस 100 ओम। तो शंट रेजिस्टेंस गिवन है तो हम आईएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, जो शंट करंट कितना आएगा। सो 200 वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, सो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, सॉरी। सो कितना आ जाएगा 200 वोल्ट डिवाइडेड बाय आरएसएस 100, तो इसका कितना आ जाएगा हमें 2 एम्पियर। ओके, 2 एम्पियर आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, और एक और कंडीशन गिवन है, टॉर्क क्या कह रहा है, टॉर्क इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। एन क्यूब ये एक गिवन है, गिवन है, ठीक है। ओके, एंड हमसे पूछा जा रहा है आर डैश, जब हम लोग क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ एडिशनल रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इन द आर्मेचर सर्किट। सो आर्मेचर सर्किट में तो आर्मेचर रेजिस्टेंस में हमको ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं 0.1, 0.1 देखो यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.1 प्लस आर एक्सटर्नल। ओके, 0.1 प्लस आर एक्सटर्नल, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हमसे फाइंड क्या करने के लिए बोला जा रहा है, आर एक्सटर्नल व्हेन एट एन इज इक्वल टू 800 आरपीएम। ओके, सो हमारा आर्मेचर करंट कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आई एल माइनस आई एफ, क्योंकि ये शंट मोटर है तो इसलिए आई एल माइनस आई एफ हो जाएगा। आई एल कितना है 22, 22 माइनस 2 कितना आ जाएगा 20 एम्पियर। ओके, 20 एम्पियर ये आ गया। और गिवन कंडीशन क्या था एक, जिससे हमें बोल रहा है कि ये अलग स्पीड पे रिड्यूस द स्पीड हो गया तो करंट भी चेंज होगा। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आई ए डैश, हम न्यू करंट को मानते हैं, आई ए डैश डिवाइडेड बाय आई ए। देखो पहले मैं ये बता देता हूँ जो ये कैसे हो रहा है, 1 सेकेंड। ये रिलेशन में टॉर्क को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे करंट कैसे निकाल सकते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, के ए फाई आई ए। ओके, सो के ए फाई आई ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। सो के ए फाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आई ए को हम लिख सकते हैं आई ए इक्वल टू एन क्यूब। सो हम ये लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आई ए डैश बाई आई ए इक्वल टू एन डैश डिवाइडेड बाई एन का होल क्यूब। ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं आई ए डैश इक्वल टू एन डैश कितना है हमारा, ये मान लो एन डैश है 800 आरपीएम। ओके, सो 800 और एन कितना था 1000 का क्यूब
एंड आई ए कितना हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे 20 एम्पियर। ओके इजी। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे 20 से 20 कैंसिल एंड क्यूब करोगे एंड 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 10.24 एम्पियर। ओके, अब हम लोग आर एक्सटर्नल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप सबसे फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ है, V इक्वल टू 200 वोल्ट है, तो हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट कंडीशन के लिए ई का वैल्यू कितना आएगा, ई इक्वल टू V माइनस आई ए आर ए, क्योंकि ये मोटर है, शंट मोटर है, इसलिए V माइनस आई ए आर ए। तो ई 1 सेकेंड, ई इक्वल टू कितना 200 वोल्ट माइनस आई ए कितना हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे 20 एम्पियर, 20 इंटू आर ए कितना है, आर ए 0.1। ओके, तो 0.1 10 से 10 कैंसिल, 200 माइनस 198 वोल्ट। ओके 198, और ई इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, के एन फाई एन, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। ओके, तो आप पिछले तो वीडियो को पॉज करके पीछे जाके देख सकते हो। तो के एन फाई एन इक्वल टू 198 वोल्ट। तो के एन फाइव को हम लिख सकते हैं 198 डिवाइडेड बाई एन। एन की वैल्यू कितना दिया हुआ था इस कंडीशन के लिए, 1000 आरपीएम, तो 1000। ओके, एंड अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ई इक्वल टू दिस इक्वेशन, ई इक्वल टू वी माइनस आई आर ए फॉर द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है, जब स्पीड की वैल्यू 800 आरपीएम रहेगी तो उसमें एडिशनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोगों ने आई ए डैश फाइंड कर लिया, सो हम लोग लिख सकते हैं ई डैश इक्वल टू भी सेम रहेगा आई ए डैश और आर ए। तो ई डैश कितना आ जाएगा, ई डैश को हम लिख सकते हैं के एन फाइव एन डैश भी माइनस आई ए डैश इंटू आर ए। तो के एन फाइव की वैल्यू कितनी है 198 डिवाइडेड बाई 1000, एन डैश की वैल्यू कितनी है, एन डैश की वैल्यू देखो 800 आरपीएम है। ओके 800, एंड वी की वैल्यू कितनी गिवन है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। और हम लोगों ने आई ए डैश की वैल्यू कितनी फाइंड आउट किया 10.24 इंटू आर ए को आप आर डैश लिख सकते हो, यहाँ पे आर ए को आर डैश लिख दो क्योंकि हमें एडिशनल रेजिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पे आर डैश हो जाएगा। एडिशनल रेजिस्टेंस आर डैश हम लोगों ने आर डैश माना ना 0.1 प्लस आर एक्सटर्नल सेकेंड कंडीशन के लिए, तो आर डैश की वैल्यू यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगी जब आप इसे सॉल्व करोगे 4.0625। बट यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आर डैश का एक रिलेशन लिखा था हम लोगों ने 0.1 प्लस आर एक्सटर्नल। ओके, सो आर डैश की वैल्यू है 4.0625 इक्वल टू 0.1 प्लस आर एक्सटर्नल। ओके, सो आर एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.0625 माइनस 0.1, तो 3.962 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके इजी। देखो सबसे पहले हम लोगों को मैं फिर से इसे रिपीट कर देता हूँ। 200 वोल्ट दिया गया था, उसमें 22 एम्पियर बोला गया है, और वो 1000 एम्पियर 1000 आरपीएम पे वो वर्क कर रहा है। तो ये फर्स्ट है। ओके, एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड शंट रेजिस्टेंस गिवन है, और उसके बाद पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ एडिशनल रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इन आर्मेचर सर्किट टू रिड्यूस द स्पीड, मतलब अब कंडीशन चेंज हो रहा है। सेकेंड कंडीशन आई 800 आरपीएम व्हेन द लोडेड टॉर्क इज क्यूब ऑफ द स्पीड। तो हम लोगों ने V इजकल टू 200 वोल्ट ये सब लिखा गिवन जो भी कंडीशन था। उसके बाद हम लोगों ने माना कि आर डैश सेकेंड कंडीशन के लिए जो आर्मेचर सर्किट से उसमें ऐड हो रहा है, तो आर एक्सटर्नल उसमें ऐड होगा 0.1 प्लस आर एक्सटर्नल, एंड देन एट व्हाट आरपीएम 800 आरपीएम। ओके, एंड देन आई हैव रिटन दैट आई इजकल टू क्या होता है आई एल माइनस आई एफ। आई एफ, तो आई एल क्या है यहाँ पे 22, और आई एफ हम लोगों ने फाइंड आउट किया 200 बाई 100, सो 2 एम्पियर। सो 2 एम्पियर हम लोगों ने माइनस किया। उसके बाद हम लोगों ने आई आई डैश निकालने के सेकेंड कंडीशन के लिए एक गिवन कंडीशन था टॉर्क इजकल टू एन क्यूब। सो टॉर्क इजकल टू एन क्यूब हम लोग टॉर्क की फॉर्मूला क्या होती है के एफ आई आई ए। सो आई ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एन क्यूब। तो आई ए डैश की वैल्यू एन, ये एन डैश और एन गिवन है, और आई ए भी गिवन है। आई ए डैश हमें फाइंड आउट करना था, तो आई ए डैश 10.24 आ गया।
ओके। सो अब हमें फाइंड आउट करने के लिए ई डैश भी हमें चाहे पता होना चाहिए, भी पता होना चाहिए, आई ए डैश भी पता होनी चाहिए, तभी हम एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके। सो हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन के लिए ई की वैल्यू फाइंड आउट की, ई की वैल्यू फाइंड आउट की तो के एन फाइव जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया 198/1000। सो 198/1000 हम लोग यहाँ पे जब पुट करेंगे तो एन डैश यहाँ पे गिवन था सेकेंड कंडीशन के लिए 800 RPM और V इजकल टू 200 वोल्ट। तो माइनस 10.24 जो आई ए डैश की वैल्यू कितनी आई है 10.24 इंटू आर डैश। आर डैश हमारा कितना निकल के आ गया 4.0625। अब हम लोग आसानी से बोल सकते हैं जी कि आर एक्सटर्नल क्या होगा, जो कि ये रिलेशन से हम लोग ये रिलेशन। सो जब हम लोगों ने पुट किया तो आर एक्सटर्नल की वैल्यू 3.962। ओके। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कभी कभी गेट एग्जाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है, ये अवेलेबल बराबर ये लिखे रहते हैं जो कि आंसर अप टू 3 डिजिट प्लेस, आंसर अप टू 2 डिजिट प्लेस। तो आप लोग ऐसे करके लिखना क्योंकि वो उसके एक रेंज में देते हैं क्वेश्चन को। ओके। ये एक रेंज में देते हैं जो यहाँ से यहाँ तक ही आंसर सही हो पाएगा। अगर आप लोगों ने 3.2 लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएंगे। ओके। तो आपको जो आंसर आ रहा हो तो आप कभी भी कोशिश करना जो कि जो डिमांड कर रहा है क्वेश्चन में, मैं उसी फॉर्म में आंसर को वहाँ पे पुट करूँ। ओके। तो come to the next question. Okay. So in these questions, a 200 volt DC shunt motor takes a current of 5.6 ampere on no load and 68.3 ampere on full load. So no load and full load given है. On full load, armature reaction weakens the field 5%. Okay, 5 क्या हो रहा है 5% डिक्रीज कर रहा है. Then the ratio of the full load speed to the no load speed. Okay, हमें given क्या क्या है, B इक्वल टू 200 वोल्ट एंड करंट इज कितना गिवन है एंड टेक्स ए करंट ऑफ 5.6 एम्पियर ऑन नो लोड। सो आई नॉट इज 5.6 एम्पियर एंड फुल लोड पे कितना गिवन है 68.3 एम्पियर। ओके। एंड ऑन फुल लोड क्या बोल रहा है 5 डैश जो है वो डिक्रीज कर रहा है कितना से 5 डैश 0.95 हो जाएगा, 0.95 इंटू 5। ओके। So and RA armature resistance is 0.2 ohm and RF is 100 ohm and voltage drop brush voltage drop is 2 volt. So हमें फुल लोड स्पीड टू नो लोड स्पीड फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीसी शंट मोटर है तो उसका आर्मेचर करंट कितना आ जाएगा IL माइनस IF। ओके। तो IF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे V डिवाइडेड बाई RF। सो V कितना है 200, RF कितना है 100। सो ये कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। सो IA नॉट कितना आ जाएगा हमारा नो लोड करंट, IL कितना गिवन था 5.6, 5.6 माइनस IF 2। तो 5.6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3.6 एम्पियर। एंड सिमिलरली फॉर IA फुल लोड पे कितना आ जाएगा IL माइनस IF फुल लोड पे है। ठीक है। तो IL इसमें इस करंट में कितना दिया होता है फुल लोड पे 68.3, 68.3 IF फॉल्ट सॉरी ISS यहाँ पे सेंट करंट भी लिख सकते हैं आप ISS। ओके एंड ISS। तो ISS कितना गिवन एंड हम लोग ने निकाला 2। तो 68.3 माइनस 2 करेंगे तो 66.3 एम्पियर। ओके। सो हम लोग लिख सकते हैं EB नॉट इक्वल टू V माइनस IARA माइनस VB। VB इज द ब्रश वोल्टेज ड्रॉप। जब VB को दिया रहे तो आप इसको जरूर इंक्लूड करना है इस इक्वेशन में। ओके। सो EB नॉट क्या आ जाएगा हमारा V इज इक्वल टू 200 वोल्ट माइनस 3.6 इज द आर्मेचर करंट एंड 0.2 is armature resistance and voltage drop is 2 volt. ओके। सो ये कितना आ जाएगा हमारा निकल के 197.28 वोल्ट। ओके। एंड EB1 या EB फुल लोड आप कह सकते हो, EB फुल लोड क्या होगा V माइनस IARA माइनस VB। सो V कितना है 200 वोल्ट, IA कितना निकाला हम लोगों ने फुल लोड के लिए
66.3 इंटू आर ए कितना है 0.2 ये -2, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, हमें कैलकुलेट करोगे तो आप 184.74। ओके, सो अब हम लोग लिख सकते हैं ईबी फुल लोड को हम लोग लिख सकते हैं KN 5N1। ओके, एंड ईबी नो लोड के लिए N0 एंड ईबी नॉट लिख सकते हो, तो KN 5N0। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया था, 5 जो है वीकेंस पड़ रहा है 5% से, सो KN 5 इंटू 0.95 इंटू N1। ओके, सो ईबी क्या डिपेंड हो रहा है N1 एंड N2 पे, सो हम लोग लिख सकते हैं EB1 ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1, सो N1 एंड 5, सो N1 इंटू 0.95 इंटू 5 और डिवाइड बाई EB नॉट, क्या लिख सकते हैं हम लोग, EB नॉट के एन 5 तो N इंटू 5, तो 5 to 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये N फुल लोड है और ये N नॉट, ये नो लोड स्पीड है। ओके, सो हम लोगों ने फुल लोड पे निकाला है, ईबी फुल लोड कितना है हमारा 184, सो N फुल लोड डिवाइडेड बाय N नॉट, बोल रहा है ना रेशियो ऑफ फुल लोड स्पीड, रेशियो ऑफ फुल लोड स्पीड डिवाइड बाय नो लोड स्पीड, क्या होगा हमारा एंड फुल लोड, ईबी फुल लोड कितना है हमारा 184.74। ओके, और ईबी नॉट कितना है हमारा, ईबी नॉट 197.28, और ये एंड 0.95 क्या आ जाएगा 0.95 ईबी एंड फुल लोड ईबी नॉट में आ जाएगा 0.95। ओके, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना वैल्यू निकल के आएगा, एन फुल लोड डिवाइडेड बाय एन नॉट, कितना आ जाएगा रेशियो इसका 0.986 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इजी, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, in this question say that a 10 kilowatt 240 volt DC shunt motor draw a line current of 5.2 ampere while running at no load speed of 1200 rpm from 240 volt DC supply. If an armature resistance is 0.25 ohm and field resistance are given, the efficiency of the motor when it delivers rated load. Okay, so efficiency हमें पूछा जा रहा है, so efficiency के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। So power is equal to 10 kilowatt, okay, and V is equal to 240 volt, and I नॉट कितना है हमारा 5.2 एम्पियर, and RA 0.25 ohm, and RF is what, कितना गिवन है 240 ohm। सो IF हम लोग निकाल सकते हैं V डिवाइडेड बाई RF, सो V कितना है हमारा 240, RF कितना है 240, तो ये कितना आ गया 1 एम्पियर। ओके, एंड ये शंट मोटर है, सो हम IA नॉट कितना लिख सकते हैं IL माइनस IF। ओके, IL हमारा कितना गिवन है नॉट 5.2 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 4.2 एम्पियर। सो नो लोड पावर लॉसेस क्या होता है, देखो आर्मेचर, सबसे पहले हमें लॉसेस फाइंड आउट करना होगा। क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, बिकॉज इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है ना आउटपुट बाय आउटपुट प्लस लॉसेस। ओके, सो आर्मेचर कॉपर लॉस हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, आर्मेचर कॉपर लॉस कितना आएगा, सो पी ए सी हम लोग लिख सकते हैं IA² इंटू RA, तो IA कितना हमारा निकला है 4.2 स्क्वायर इंटू 0.25,
सो ये कितना आ जाएगा 4.41 वॉट। ओके, एंड फील्ड कॉपर लॉस कितना आ जाएगा हमारा, फील्ड कॉपर लॉस। ओके, सो V इंटू आई एफ। सो V हमारा कितना है 240 इंटू 1, आई एफ हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 1। ओके, सो ये कितना आ जाएगा 240 वॉट। और इनपुट पावर एट नो लोड कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, इनपुट पावर एट नो लोड लिख सकते हैं P in इज V इंटू आई। ओके, सो V 240 इंटू आई कितना गिवन था हमारा नो लोड पे 5.4 5.2, तो पावर इनपुट कितना आ जाएगा 1248। ओके, एंड कांस्टेंट लॉसेस कितने आ जाएंगे अब हमारे, कांस्टेंट लॉसेस कितने आ जाएंगे हमारे, पीसी हम लिख सकते हैं 1 सेकेंड, ये 1248 माइनस ऑफ 4.41 प्लस 240। आप ये लोग सब कुछ जानते हो, क्योंकि इनपुट पावर इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, कांस्टेंट लॉस इक्वल टू क्या होता है, इनपुट पावर माइनस आयरन लॉसेस प्लस मैकेनिकल लॉसेस। ओके, सो आप जब इसे माइनस करो, जब इसे सॉल्व करोगे तो 1003.6 वॉट आएगा। ओके, एंड अब हम लोग फाइंड करते हैं रेटेड लोड करंट, बिकॉज in this given that the efficiency of the motor when it delivers at rated load, so rated load current हमें find out करना होगा। so rated load current IL equal to P out divided by B। so P out हमारा कितना given है 10,000 वॉट, 10,000 वॉट 10 किलोवाट है ना, 10,000 वॉट डिवाइडेड बाई 240। सो इसका कितना आ जाएगा हमारे पास 40 1 सेकेंड 41.67 41.67। ओके, तो हम यहाँ पे रेटेड करेंट रेटेड आर्मेचर करंट क्या लिख सकते हैं, IL माइनस IF। ओके, तो IL हमारा कितना गिवन है 41.67 माइनस IF हम लोगों ने फाइंड आउट किया था IF 1 एम्पियर। सो IF 1 एम्पियर, सो कितना आ जाएगा हमारे पास 40.67 एम्पियर। ओके, एंड रेटेड लॉसेस कितना आ जाएगा, लॉस एट रेटेड लोड कितना आ जाएगा हमारा, आर्मेचर कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, जिस तरह हम लोगों ने वो फाइंड आउट किया था उस तरह हम लोगों ने यहाँ भी फाइंड आउट करना है रेटेड पे कितना आएगा आर्मेचर कॉपर लॉस। सो इसे PACU कर सकते हैं 40.67 आई स्क्वायर इंटू आर। सो RA इज 0.25। ओके, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 413.7 वॉट। एंड सिमिलरली फील्ड loss is 240 watt and constant loss कितना आ जाए हमारा, निकाला है हम लोगों ने 1003.6 वॉट। तो टोटल लॉस अब कितने आ गए हमारे पास, टोटल लॉस कितने आ गए 413.7 इन द रेटेड आर्मेचर कॉपर लॉस। ओके, प्लस 246 प्लस 1003.6। ओके, तो इससे आप जब सम करोगे तो 1657.3। सो हम लोग अब इसे लिख सकते हैं इफ़िशियंसी को, क्या होता है इफ़िशियंसी का फॉर्मूला, पावर आउटपुट बाय पावर आउटपुट प्लस लॉसेस इनटू 100%। ओके, सो पावर आउटपुट कितना हमारा आया है, पावर आउटपुट गिवन दिया हुआ था 10,000 वॉट डिवाइडेड बाई 10,000 वॉट प्लस लॉसेस कितना आया हमारा
16 इंटू 1657.3 इंटू 100%। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, कितने परसेंट आ जाएंगे, 84.56% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई नो दिस इज द लेंदी प्रोसेस, बट कोई क्वेश्चन में हमें शॉर्टकट से नहीं जाना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे तो वो आपको बेटर रिजल्ट देगा। ठीक है, सो हम लोगों ने यहाँ से ऐसे करके इफिशिएंसी फाइंड आउट किया। सबसे पहले हम लोगों को आर्मेचर कॉपर लॉस फाइंड आउट किया, जो गिवन कंडीशन में था नो लोड पे। उसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि रेटेड लोड पे कॉपर लॉस कितने आ रहे हैं। सो 413 पॉइंट्स ये आया। उसके बाद फील्ड लॉस दोनों में सेम होंगे, और कांस्टेंट लॉस 1003 निकाला था हम लोगों ने। ठीक है, तो उससे हमारे टोटल लॉसेस आ गए। और उसके बाद हमें पावर आउटपुट तो पता था बट लॉसेस नहीं पते थे, तो लॉसेस हम लोगों ने फाइंड आउट किया। सो इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, पावर आउटपुट बाई पावर आउटपुट प्लस लॉसेस। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 84.56% आ रहा है। ओके, इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल्स। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।